Welcome students. Students, in this video we have to take a very small miniature topic. बच्चों आपको याद होगा हमने केस 2 पढ़ा था गुडविल का. When new partner does not bring his share of goodwill in cash. बच्चों हम न्यू पार्टनर को डेटर बनाया करते थे, आपको याद होगा सबको. Children, this is an alternative case least tested in the board examination. It goes like this, children. The method is again named as net effect method. The new partner shall become the debtor. बट बच्चों क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगा. समटाइम्स द क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट टू क्रिएट अ लोन अकाउंट. बच्चों अब क्वेश्चन में लिख के आएगा दैट द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू क्रिएट अ लोन अकाउंट. द ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एक्चुअली. तो बच्चों अब आप इसकी अकाउंटिंग लोन अकाउंट क्रिएट करके करेंगे फॉर दैट अनपेड शेयर ऑफ गुडविल विच द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग. Let's see, children, what accounting procedure is followed. So children, the entries shall be passed in the following manner. First and foremost, for bringing capital only, the entry would be cash or bank account debit to new partners capital account. Then children, for unpaid share of goodwill, the question will instruct you कि आप इसका एक loan account create करिए. तो बच्चों आप journal entry pass करेंगे in the usual manner. Earlier we used to write new partners current account. Now we will be writing new partners loan account debit to sacrificing partners capital or current account with the unpaid share of goodwill divided in sacrificing ratio. तो children remember पूरा concept same रहेगा, सिर्फ current account की जगह you will process loan account. Everything remains same. And बच्चों ये जो loan account है, here it is showing a debit balance. The new partner becomes a debtor in the name of loan, not current account. And बच्चों balance sheet prepare करते time this will appear on the asset side. Children, there is a small question to explain the concept. Same question, children. Ram and Shyam are partners. Admit Mohan for 1/4 share. Mohan brings 2 lakh as capital but unable to bring his share of goodwill. Now instruction will be given to you like this. It is decided to create a loan account for such unpaid share of goodwill. एंड गुडविल इज वैल्यूड एट ₹80,000. चिल्ड्रन अगर एग्जिस्ट का केस होगा तो आप राइट ऑफ कर देंगे. हेयर इट इज नॉट सो, तो हम नॉर्मली जैसे अकाउंटिंग करते थे वील बी डूइंग इट इन द सेम मैनर. बच्चों सबसे पहले एनपीएसआर और एसआर कैलकुलेट करेंगे आप. देयर आफ्टर चिल्ड्रन वील पास द एंट्री फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रिंगिंग कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2 lakh. देन चिल्ड्रन मोहन्स शेयर वॉज 1/4. 1/4 of 80,000 is 20,000. Entry would become Mohan's loan account debit to Ram's capital to Shyam's capital, that is sacrificing partners. So children, it is very simple to understand, and such loan account like current account will appear on the asset side of balance sheet. जब आप बच्चों बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब अप्लाई होगा. सिंपल जर्नल के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, रिपीटिंग अगेन, जब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको लोन अकाउंट क्रिएट करना है तब बच्चों आप मोहन्स करंट की जगह मोहन्स लोन अकाउंट लिखेंगे. I hope so children, the concept was quite simple and it is understood properly. Like we used to have current account, now we'll be having loan. और बच्चों याद रखिएगा यूज तब करना है जब क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन दे. अगर क्वेश्चन में बच्चों ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप सिंपली अनपेड शेयर के लिए करंट अकाउंट ही न्यू पार्टनर का यूज करेंगे. फॉलोइंग अप चिल्ड्रन, अगेन अ स्मॉल न्यू टॉपिक विच मे बी टेस्टेड इन द क्वेश्चन. बच्चों गुडविल के जो स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको एक सेंटेंस और लिख के मिलेगा. एडमिशन के 1 साल बाद जो प्रॉफिट होगा उसका क्या करना है. दैट इज प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. तो चिल्ड्रन समटाइम्स द क्वेश्चन में प्रोवाइड यू द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स और डिविजिबल प्रॉफिट्स इन द क्वेश्चन आफ्टर एन ईयर ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. तो बच्चों अब ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, आप इस प्रॉफिट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, लेट्स सी. सो चिल्ड्रन वील पास अ सिंपल जर्नल एंट्री. बच्चों जैसे आप एंट्रीज करते थे वैसे ही होंगी. ये एंट्रीज क्वेश्चन के लास्ट में सोल्यूशन में अपीयर होंगी. क्यों? बिकॉज दिस फिनोमेना इज टेकिंग प्लेस आफ्टर एन ईयर ऑफ एडमिशन. और बाकी अकाउंटिंग बच्चों जो हम लोग ने करी दैट यूज टू टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन. तो दीज 2 सेट ऑफ एंट्रीज चिल्ड्रन वुड बी पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. फर्स्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, द एंट्री इज चिल्ड्रन PL account debit to PL appropriation account, and thereafter children for distribution among all partners. Why all?
बिकॉज बच्चों एडमिशन के बाद सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट्स का एंटाइटलमेंट होता है. चिल्ड्रन, द जर्नल एंट्री विल बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट. एंड चिल्ड्रन, दिस वुड बी डिवाइडेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, स्मॉल क्वेश्चन जैसे आप गुडविल के करते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसे ही आएगा. एक लाइन और अटैच हो जाएगी, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड टू दिस मच. बच्चों और आपको कोई चीज नहीं मिलेगी क्वेश्चन में, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, बिकॉज उन चीजों की अकाउंटिंग ऑलरेडी आप फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हो. तो क्वेश्चन यहां पे एक एड ऑन कॉन्सेप्ट आपको दे देगा, दैट इज प्रॉफिट्स आर गिवन. तो बच्चों सबसे पहले आप उसकी ट्रांसफर एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट. चिल्ड्रन, ये टॉपिक लेना इसलिए जरूरी था बिकॉज आप प्रॉफिट डिवाइड करने की एंट्री तो कर लेते, कोई गलती ना करते, आपको आती है, बट ट्रांसफर की एंट्री जनरली बच्चे भूल जाते हैं. सो स्पेसिफिकली आई हैव टेकन अप दिस टॉपिक इन दिस वीडियो. तो बच्चों याद रखिएगा, पहली एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड सेकेंड बिकॉज अदर आइटम्स आर नॉट गिवन, तो आप उसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोल देंगे, एंड इट विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Okay children, so I hope so this concept was quite clear. Thank you children.